Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. CET exam is now done. Pretty soon the cap rounds will start. अभी कैप राउंड स्टार्ट होने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं. तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस वीडियो. सो CET 2024 cap rounds documents required. Okay, now we are going to look at category wise documents list. So what are the documents required for general category candidates? EWS, OBC, SBC, VJ, NT, SC, ST, these category candidates. Then there are types of candidates as well. So there are few type A candidates, type B candidates, type C candidates. What are those? We are going to discuss that as well. And what all documents are needed for that? We will discuss that. And then there are few colleges which have minority seats like Hindi minority, Tamil minority. Those candidates, what all documents are needed for them? For PWD candidates, that is person with disability, and orphan candidate, what are the documents needed? And TFWS candidate, tuition fee waiver scheme, what documents are needed for that? We are going to discuss this in this video. Overall, it is going to be very helpful video. We are expecting that cap rounds will start within a month. So within a month, you need to keep all these documents ready, or you need to start the application for these documents. Okay, so first let us start. So what we have first is the documents that are needed for all the candidates. You will need your 10th mark sheet or your 12th mark sheet or certificate, mark sheet or certificate, or diploma certificate. If you have done diploma instead of 12th standard, you will need that. If then your exam scorecard. So for example, you will need your CET exams scorecard. Followed by that, you will need the school leaving certificate. If you are done with your graduation, or sorry, if you are done with your 12th, you must have got a school leaving certificate. That school leaving certificate will be needed because that will have your place of birth, your date of birth. School leaving certificate is a proof of multiple things. So if you have the school leaving certificate, very good. But you will have that only after you have got the result of your 12th or graduation. Okay, then Indian nationality certificate. Many students don't have this certificate. They just believe कि हम तो Indian citizens है, हमको क्या चाहिए? But you will be required to produce Indian nationality certificate as well. ठीक है, फिर आते हैं हमारे टाइप ए कैंडिडेट्स जिनका डोमिसाइल बर्थ लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द बर्थ इन महाराष्ट्र है ना. टाइप ए कैंडिडेट्स क्या है? जो महाराष्ट्र में बर्थ हुआ है उनके लिए टाइप ए कैंडिडेट्स होता है. उनको क्या क्या चाहिए? डोमिसाइल सर्टिफिकेट चलेगा, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट. एज आई टोल्ड यू, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये इट शुड इंडिकेट द बर्थ इन महाराष्ट्र. ठीक है. अभी टाइप बी कैंडिडेट्स क्या है? टाइप बी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट्स फादर और मदर इंडिकेटिंग रेसिडेंस इन महाराष्ट्र. ठीक है. टाइप बी कैंडिडेट्स कौन है? जिनका बर्थ महाराष्ट्र में नहीं हुआ है बट उनका रेसिडेंस महाराष्ट्र में है. ऐसा भी एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा आपको. उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसको कहते हैं. इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट अलग है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग है. देन यू हैव टाइप सी कैंडिडेट्स जिनको प्रोफॉर्मा ए बनाना पड़ेगा, जिसमें दिया जाएगा इंडिकेटिंग फादर और मदर आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पोस्टेड इन महाराष्ट्र. है ना, मतलब आपके फादर या मदर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप टाइप सी कैंडिडेट में होगे. देयर आर डिफरेंट सीट्स फॉर टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी कैंडिडेट्स. तो ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है. फॉलोड बाय दैट, इफ यू बिलोंग टू एससी और एसटी कैटेगरी, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी लगेगा. कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट आर टू डिफरेंट सर्टिफिकेट्स. ठीक है, तो दो सर्टिफिकेट आपको लगेंगे इसमें. ठीक है. नेक्स्ट, इफ यू बिलोंग टू वीजे, एनटी, ओबीसी, एसबीसी कैटेगरी, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट तो लगेगा ही. कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो कि अलग है वो भी लगेगा, एंड आपको नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट भी लगेगा. नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट इंडिकेट्स कि आपकी इनकम लेस देन 6 लाख रुपीज है.
नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपका वैलिड अप टू 31 मार्च 2025 होना चाहिए। तो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। देन कम्स इफ यू आर एन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट, आपको प्रोफोर्मा 5 बनाना पड़ेगा। इफ यू आर ऑर्फन कैंडिडेट, एक आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगेगा कि यू आर डोमिसाइल रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र। फॉलोड बाय दैट, अगर आप कोई माइनॉरिटी में बिलोंग करते हो तो डिक्लेरेशन ऑफ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी और लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग रिलीजन स्लैश मदर टंग इंडिकेटेड। तो यहाँ पे भी आपका लिविंग सर्टिफिकेट काम में आता है, ठीक है। बट अगर वो नहीं है तो आपको एक डिक्लेरेशन बनाना पड़ेगा अबाउट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। देयर आर मेनी कॉलेजेस जहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। देयर इज तमिल माइनॉरिटी, हिंदी माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, बहुत सारे माइनॉरिटी कॉलेजेस आर प्रेजेंट देयर इन महाराष्ट्र। तो उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट लगेगा। जस्ट मेक श्योर करो कि ये सर्टिफिकेट्स आपके कैप राउंड के पहले रेडी हो या फिर उसका प्रोसेस तो भी स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट नहीं है बट अगर आपने रिसीट भी दिखा दी कि मैंने ये सर्टिफिकेट बनाने डाला है, स्टिल दैट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। लास्ट इज टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनको इनकम सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग इनकम लेस देन 8 lakhs। अगर आपके पास टीएफडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपकी ट्यूशन फी वेवर स्कीम के थ्रू ट्यूशन फी माफ हो जाएगी। सो इफ योर फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख रुपीज, आप ये टीएफडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बनवा लो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बनवाना कहां से है, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विल बी made in Setu. Each and every city will have a Setu, so you can go and make documents over here. There are few documents जो यहाँ पे नहीं बनेंगे, so anyone, any lawyer or any agent will help you make these certificates, ठीक है। हर सिटी में अलग अलग जगह पे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो आपकी सिटी का कहाँ पे, आपकी सिटी का लॉयर आप एक पकड़ो एंड उनको पूछो मेरे को ये सर्टिफिकेट्स चाहिए, कहाँ पे बनते, कैसे बनते, पूरा प्रोसेस जान लो, है ना। उधर फिर आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये सर्टिफिकेट बनता है, वहां पे एजेंट पकड़ के करो या फिर खुद से मेहनत करो, दैट इज योर चॉइस। बट कैप राउंड के पहले जितने भी बोले हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, तो आपका हैसल फ्री कैप राउंड प्रोसेस होगा, ठीक है। All these images we have uploaded on our Insta channel as well. For more such content, do follow us and subscribe to this channel and like this video. And do share this video with a friend who may need it. Thank you so much. Jai Hind.